آج ہمارے پاکستان میں مہمانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ اب کیسے تقریر کریں گی اور اس میں کیا کہیں گی، جبکہ پاکستان کے اندر نئے مساق جمہوریت کا بے وقت عمران خان کی طرف سے مطالبہ۔ اب آگے کیا ہوگا، آج کی ان اہم خبروں کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر آج ایسے ہوا کہ مہمانوں کو بلایا گیا، کہا گیا ہمارے پاس آئیے، ہاں ہم آپ سے ملیں گے، بالکل آپ سے بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، صلح کریں گے، ملک اور قوم کے فائدے میں مذاکرات کر کے اس کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ اپنے گھر جس کو بلایا جائے، ہماری روایات کے مطابق اس کو مہمان کہا جاتا ہے۔ وہ جو مہمان تھے ان کا نام تھا اسد کیسر اور پرویز خٹک۔ پرویز خٹک خاص و خاص ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور اسد کیسر سابق سپیکر ہیں اور عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں۔ ان کو بلایا گیا، بٹھا دیا گیا ایک سیف ہاؤس اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر عمران خان تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ان کو بٹھا دیا گیا۔ اچھا، گرفتار وہ پہلے سے تھے، خبر بعد میں چلنا شروع ہوئی خان صاحب کے خطاب کے بعد کہ ان کو کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ میڈیا کی حالت دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ جو مذاکرات کرنے گئے تھے، مہمان تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ گئے تھے مذاکرات کرنے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کروانے اور کرنے تھے۔ دانوں نے مل کے مہمانوں کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پرویز خٹک چھوڑ دیں گے عمران خان کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی تک نہیں چھوڑا، وہ اب بھی مشکل حالات کا شکار ہیں اور جیل میں ہیں۔ جو مذاکرات کرنے گئے تھے انہیں کہا بھائی جان اب تو آپ گرفتار ہو گئے ہیں، بات ہماری مانتے کوئی نہیں، پہلے سیف ہاؤس میں رکھا کہ جب تک عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب ان کی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ عمران خان کو ہم جانتے ہی نہیں، یہ دہشت گرد ہے، یہ پاکستانی شہری ہی نہیں، یہ کوئی سیاستدان ہی نہیں، یہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت تو آپ کر چکے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ عمران خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہی مذاکرات ہوں گے۔ اس وقت اور کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر بلائے گئے لوگوں کو مذاکرات کے لیے گرفتار کر لیا جائے، وہاں پہ کس عمران خان کی زندگی محفوظ، سیاست کو کوئی خطرہ نہیں، یا وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ پرویز الہی گرفتار ہیں، بیٹا مونس الہی باضد ہے خان کا ساتھ دوں گا، وہ خود یورپ میں بیٹھے ہیں، صحبتیں والد صاحب برداشت کریں گے، پرانے ساتھی تھے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اب اسد کیسر اور پرویز خٹک جو ہیں مشکل میں آگے ہیں۔ ان کو بھی لگ پتہ گیا ہوگا مذاکرات کیا ہوتے ہیں اور کس کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے تھے، اور اگر مذاکرات کرنے جائیں تو یہ حال ہوتا ہے، تو جب مذاکرات ہو جاتے تو اس کے اوپر بعد کیا حال ہوتا، یہاں کس کے اوپر کوئی اعتبار کرے۔ نئے مساق جمہوریت کی گونج دکھائی دی، اور اس سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مریم صاحبہ کیسی تقریر کریں گی۔ تقریر کیسی ہوگی جس میں عمران کا ذکر نہیں ہوگا؟ جب تک عمران کا ذکر نہیں ہوگا تب تک بیانیہ نہیں بنے گا۔ آپ تقریر کریں گی تو اس میں 50 مرتبہ تو خان صاحب کا نام آتا ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ آپ اگر نام لیں گی تو خان صاحب کے نام کے اوپر تو ٹی وی پہ پابندی ہے، تو کون چلائے گا ان کی تقریر کو؟ لہٰذا عمران خان کا نام لینا مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جہاں جرم ٹھہرے گا، وہیں پہ ان کی تقریر کیسی ہوگی ہم بھی سنیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور یہ جلد پتہ چلے گا کہ عمران خان کا نام لیے بغیر کیسے تقریر کا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر، اور وہ کیا خود سے محسوس کریں گی۔ آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا، یہ میری ذاتی حیثیت میں پچھلے 10 سالوں سے خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر ہر ادارے کو اس کی حیثیت میں رکھنے اور اس کو حدود اور قیود سے باہر نہ آنے کے لیے ایک ہی حل ہے۔ یہ جو باندر کا ناچ نچاتے ہیں مداری صاحب، یہ مداری صاحب کے خلاف اگر یہ سارے گٹھے ہو جائیں باندر معذرت کے ساتھ، تو پھر ان مداری صاحب کو جب بھوک لگے گی تو وہ ان سے ناچ نہیں نچائے گا۔ خان صاحب نے بے وقت راگ لامپا کہا، میرا 27 سال کا تجربہ ہے، میں اس اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں، یہ
ए प्लान के ऊपर हैं, जब बी बनेगा तो आप भी उसमें से माइनस हो जाएंगे। ये नहीं कि मेरे साथ भी ऐसे किया गया और मेरा बड़ा तजर्बा है। खान साहब नहीं, आपका तजर्बा नहीं है ज़्यादा, आपसे ज़्यादा तजर्बा नवाज शरीफ साहब का है, आपसे ज़्यादा तजर्बा पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब का है। वो जेलों में रहे, ये भी जेलों में रहे, आप अभी तक जेल भी नहीं गए और वो 50 साल से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं। उन्हें बड़ा सख्ती से पता है। और गुज़श्ता दिनों लंदन में एक निजी महफिल के अंदर अपने लोगों से मिलते हुए मियाँ साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान इनको सिर्फ डराए रखते तो हम सब का भला था। इमरान ने मार दिए सर में, अब वो सब के ऊपर हावी हो गए और अब हम इनको नहीं संभाल सकेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। खान साहब आपको एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, जैसे कैसे भी वो बोलते हैं, ख़ासकर ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके वो अल्फाज याद कीजिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चीखते थे, चिल्लाते थे, ज़ोरदार ये बातें कहते थे। अलग बात है आज वो खुद भी उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे कि कल आपके ऊपर भी ये वक्त आएगा, ये वक्त है कि हम सियासतदान एक हो जाएं। और आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा, ना मैंने किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार करवाया, ना मैं किसी को करना चाहता था। ये हसन हुसैन, नवाज शरीफ, मरियम जरदारी साहब, फरियाल तरपुर मुझसे पहले के केस बने हुए थे। इन्होंने मेरी हुकूमत से पहले अपनी ही हुकूमत के दौर और अदवार के अंदर जो हैं वो केसेस बने थे और मुल्क छोड़ा था और सज़ाएं काटी थी। बिल्कुल ये बात भी खान साहब ठीक कह रहे हैं, मगर आप भी तो कहते थे ना चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, फलां चीज़ नहीं करूंगा। और आज पीडीएम अगर मिसाल के जमहूरियत करके पीपल्स पार्टी और नून लीग कल के दुश्मन और मौजूदा सियासत के दोस्त हो सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपस में बैठ सकते हैं। और जो सड़कों पे एक दूसरे को घसीटना चाहते थे, जो एक दूसरे का पेट फाड़ के उसके अंदर से डॉलर्स निकालना चाहते थे, जिसने एक दूसरे को 11 साल जेलों में रखा, जजों को फ़ोन करके सज़ाएं दिलवाई, और जब उनको समझ आई कि ये एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत के साथ अकेले ऐसे नहीं लड़ सकती, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, वो यकजा हुए और उन्होंने अपनी चीज़ों को सुलझाया। पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई, फिर नून लीग आई, फिर आप आगे, और इसी तरह से पहले 2 पार्टियां बारियां लेती थी, आप आए, आपने निज़ाम को चैलेंज किया, निज़ाम को बदलने की कोशिश की, बदला भी, लोगों को शऊर दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आज आपका खिताब सुन के मुझे ये बात याद आई ख्वाजा साद रफ़ीक की, और आपको सुना और ये लगा कि आप भी एक नया मिसाक जमहूरियत चाहते हैं। क्या ये मिसाक जमहूरियत वही है? अगर पीपल्स पार्टी ने बैत कर ली है तो नून लीग के मुखालिफ हैं, नून लीग को तोड़ना है तो पीटीआई को लेके आना है, पीटीआई को तोड़ना है तो फिर 11 जमातों को लेके आना है। और आज 11 जमातों के खिलाफ आप ताकतवर हैं तो आप बैत कर लें तो वो ले आएंगे किसी और को या आपको। ऐसे अगर आप करेंगे तो फिर तो आपकी बात ठीक नहीं है। वरना सियासतदानों का, जैसे आप कह रहे हैं कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का और नून लीग का अपने नाम लेके खान साहब आज कहा कि याद रखिए मेरा तजर्बा है और आपके साथ ये ऐसा करेंगे जैसा हमारे साथ हुआ, उनके साथ उससे पहले भी होता रहा, आपके साथ पहली बार हुआ है, इसलिए आपको समझ आई। आप खामोश नहीं रहे, वो किसी हद तक खामोश रहते थे। किसी ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, मियाँ साहब ने कहा, बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद ISI और आर्मी चीफ को हाजिर सर्विस को कहते रहे कि वोट को इज्जत दो, बताओ मुझे क्यों निकाला। तब लोग उनके साथ निकले, हमने भी उनको बट्टो करार दिया। फिर आप आए, आपने मास संभाला, सारी चीज़ें हुई। मगर आज क्या आप जो चीज़ चाहते हैं कि हम सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, आप चाहते हैं या मुश्किल में हैं तो इसलिए ऐसे कह रहे हैं? इस मुल्क का वाहिद हाल यही है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ आप जमा नहीं हों, किसी इदारे के बुग़्ज़ में आप जमा नहीं हों, अपने ज़ाती मफादात की खातिर जमा नहीं हों, आप सिर्फ मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए जमा हों। और एक सियासतदान का काम यही है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखाए, नफ़रत को ख़त्म करे, हसद मार दे, मुनाफ़िक़त उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी कीजिए, एक दूसरे पे एतबार कीजिए, वरना आपको हमेशा से जो है वो चोर, झूठा और मुनाफिक साबित करने की कोशिश की है, लड़ाया गया। अब भी जो नई पार्टियां बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी को तो शायद कुछ मिल जाए, नुकसान तरीके इंसाफ का होगा और उसके बाद बड़ा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का होगा। उनको भी समझ है ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, लेकिन जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये बिखरे हैं, ये निखरेंगे कब? तो सियासतदान अगर एक जगह के ऊपर जमा हो जाएँ तो वो इस्टेब्लिशमेंट की इन चीज़ों को, इन सियासी मुदाखलत को रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। इख्तियार दे दीजिए उनको, वो खुद से आर्मी चीफ लगा दिया करें, अपने इदारे के अंदर खुद जो है अपॉइंटमेंट करें और सारी चीज़ें लेके बढ़ें। खान साहब
आज आप चाह रहे हैं कि मैं गट्ठे बैठे, आपके बाकोल के सबको आखिरी पैगंबर ने माफ़ किया था, चोरों को नहीं किया था। आपके बाकोल की उनको चोर किसने बनाया, क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, लेकिन ये वहाँ आप ये बात क्यों भूल गए कि मुनाफिकीन के साथ और गैर मुस्लिमों के साथ सुलह हुदैबिया भी हुई थी। तो हर चीज़ को सामने रखना पड़ता है, इस हद तक नहीं जाना पड़ता कि ये मेरा बयानिया टूट जाएगा, मैं नहीं बैठूंगा। 12 मरतबा वक्त दिया गया कि आप आपस में बैठें, चीज़ें करें, लेकिन वक्त गुजर गया। तमाम सियासतदानों ने एक दूसरे के ऊपर शक किया, एक दूसरे के ऊपर बोतान तराजी की, इल्ज़ाम तराशी की, जिसके बायस दूरियां बढ़ती गईं, एक दूसरे के चेहरे नहीं देखना चाहते। फिर भी हो सकता है कि किसी को समझ आ जाए, कुछ को समझ आ जाए, तो वो आपस में मिल बैठें और कोशिश करें कि मेरा बेटा बेशक वज़ीर आज़म ना बने, मैं इसकी कुर्बानी देता हूँ, मैं खुद वज़ीर आज़म ना बनूँ, इस बात की कुर्बानी देता हूँ, लेकिन इस निज़ाम को किसी ट्रैक के ऊपर लाने के लिए हम आपस में एक हो जाते हैं। खान साहब, ये आपका बेवक्त मुतालबा है अगर आप ये चाहते हैं कि मिसाक जमहूरियत हो। जब बात तब होती है जब आप ताकत में हों, जब आप मुश्किल में ना हों। मज़ा तो तब आता जब आप कहते कि आओ हम मिल के सारे कुछ एक नया ज़बानी कलामी तहरीरी तौर पे स्टाम्प पेपर लिख के एक चीज़ तय कर लेते हैं, इलेक्शन करवाने साफ़ व शफाफ। आज जिसको आवाम वोट देंगे हम उसकी तरफ आ जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी और हम किसी और के चुंगल से बाहर निकलें। आज आप मुश्किल में हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, या यही सियासतदान एक दूसरे सियासतदान इमरान खान को कुचलने की कोशिश करेंगे, उनके लिए मिडिल मैन बनेंगे, या क्या होगा। देखते जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। अब भी वक्त है कि सियासतदान आपस में एक हो जाएं और अदलिया भी भरपूर तरीके से आज़ाद होगी, मीडिया भी आज़ाद होगा, ये सारे दुआएं देंगे। आज अगर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा है जो इन सियासतदानों को इस निज़ाम की बेहतरी के लिए एक कर सकते हैं, तो वो दो इदारों के चंद लोग हैं, गिने चुने। एक मीडिया के अंदर से चंद सहाफ़ी और दूसरा अदलिया के अंदर से चंद वकला। वो इनको आपस में बैठा सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, वरना डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ की पॉलिसी जो 1947 से आज तक चल रही है वही कायम और दायम रहेगी और आप लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो आप आज़ाद नहीं होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पाँव के अंदर बेड़ियां डाल दी जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।